Assalamu alaikum guys. This is Sir Hassan Khan once again. Thank you for joining in. आज थोड़ा टाइम लग गया हमको ज्वाइन करने में. We've already wasted about 18 minutes. Very precious time. Guys, please try to be on time. कल से inshallah. I've specifically talked to the administration and I've tried to give you as much time as possible, so that we could breeze through our SAT 1 syllabus as soon as possible and get on to the past paper discussions as soon as possible. तो इंशाल्लाह कल की जो आपकी क्लास होगी, I believe we will meet tomorrow from 4 to 5:30 p.m. Please try to be on time. We have a lot of stuff to cover, okay? Um, as you guys know, I had scheduled a test last week, जो कि आप में से तकरीबन 6 से 7 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, which is very good. और जितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उनमें से majority students were averaging around 70 to 80%, which is fantastic given the fact that it was your first test. I discussed the answers with you guys as well, and I even sent you the answer copy on WhatsApp. So if any one of you has any difficulties regarding that particular test, please contact me and inshallah I'll help you out regarding that as well. Okay, so given the fact that we've already discussed the first 6 rules of grammar, you need to remember, guys, that the reason why we're studying all these rules of grammar is because in the writing section you will have 4 passages. They may be unrelated to one another. In fact, in most cases, those 4 passages are not related to each other. And in each passage, there would be certain parts of the passage underlined, and you would read those parts with the primary assumption that there's something wrong with it, right? And you are supposed to not only identify the error, but also be able to correct the sentence and make it more influential, make it more eloquent, make it more powerful in communication. And for that, of course, you have to digest these rules of grammar. Given the fact that you guys have an O levels, A levels background, I have been in your shoes back in the day. So I understand that you haven't memorized these rules of grammar ever, because you were never asked to. I never memorized them myself. But when I was attempting my SAT 1 exam back in the year, um, I had to, so these are a few grammatical requirements that you have to meet while you're preparing yourself for SAT 1. So if there are any questions regarding the first 6 rules that we've covered, remember, पहले 3 rules subject verb agreement पे based थे, उसके बाद rule number 4, 5 and 6 were based on non-idiomatic hearing. If you have any questions regarding that, guys, please shoot them at me right now. फिर हम आगे बढ़ते हैं, because we have a lot of important stuff to cover today as well. Please let me know. Unmute करके बता दीजिए, chat box में लिख के बता दीजिए, whichever way you find comfortable. Is everything clear so far? Guys? Okay, Chinita says yes. Guys, wake up, come on. नींद से जागो, जरूरी है. Focus. Everyone's okay. Yasir? You good? Hiba? Okay, perfect. Okay, perfect. So let's continue. Let's talk about rule number 7. Acha, rule number 7, I've called rule number 7 wrong word. Wrong word पे जरा focus कीजिएगा. पहले 2-3 sentences देखते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? Look at the first sentence. Shoes and laces are complementary products. इस sentence में कोई गलती नजर आ रही है? आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इस वक्त ए लेवल्स में, या जिन्होंने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी? आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, गाइस? यासिर? यासिर, आई कांट हियर यू बच्चे. आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी यासिर? जी सॉरी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ओ लेवल्स में? जी जी. अच्छा चले, परफेक्ट. इस सेंटेंस में आपको कोई गलती नजर आ रही है? शूज एंड लेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. बेटा ये लफ्ज जो है ना, जो आपके स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है, दिस वर्ड इज एन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जैसे पेप्सी एंड कोक आर सब्स्टिट्यूट्स, substitute एंड and जब कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे Zinger शूज एंड and लेसेस, ketchup, राइट, etc. एग्जैक्टली बर्गर्स एंड केचप, राइट, सो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसकी क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? COMPLEMENTARY, उसकी स्पेलिंग COMPLE होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? COMPLI। दिस इज अ होमोफोन which is being used, and this is something which you cannot ignore. Basically what I'm trying to make you understand is कि एग्जामिनर्स आपकी नफ्सियात को चेक करने के लिए और आपकी अलर्टनेस को चेक करने के लिए पैसेज में बीच बीच में इस तरह के होमोफोनिक पेयर्स दे देते हैं आपको, and the examiners expect you to know the meanings of both words. And of course, if you know the meanings of both words, then only you would be able to identify if there is an incorrectly used word in the sentence, right? So पहले sentence के अंदर लफ्ज complementary में गलती है, I believe हानिया ने, यस, और हिबा ने भी इनफैक्ट दोनों ने बिल्कुल सही बात कही। एग्जैक्टली बच्चे, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, हानिया और हिबा। The word should have been COMPLEMENTARY. So again, that's the whole point of this exercise. Let's look at our second sentence. Junoon was Saad's favorite Pakistani rock band during his college years. इसमें तो बहुत सिंपल एरर नजर आ रहा होगा आपको। This word is incorrect. BANNED की जगह होना चाहिए था BAND. Now a band means a group of people. यहां जो बैंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, that means restrict या stop, मैं कह सकता हूं prohibit, राइट? जैसे बैन लगता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर कोरोना वायरस के दिनों में इंपोर्ट्स पे बैन लगा हुआ था, रुकावट, ठीक है? तो दिस वर्ड इज इनकरेक्टली यूज्ड, रॉन्ग वर्ड। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, इट वाज द परफेक्ट वेदर टू हिट द बीच। हिट द बीच से मुराद है बीच जाना। हिट द बीच से पहले लिखा हुआ है वेदर। कौन सा वेदर होना चाहिए? WEATHER, right? So these are homophones, and you should know the meanings of the words. Whether और weather में जब मतलब का फर्क पता होगा तभी आप wrong word identify कर पाएंगे। चौथा sentence देखिएगा, after the doctor informed Robert of the potential heart risks of being overweight, he started taking the gym seriously to lose weight. Guys, come on, what do you think is wrong? Janita? Hiba, Hania, Yasir? What do you think is wrong? Exactly, very good, very good. Janita ने भी सही जवाब दिया, हिबा, हानिया, everyone's correct. It should have been LOSE. Exactly, these are homophones. एक तरफ है LOOSE और एक तरफ है LOSE. ये जो सेंटेंस में लिखा है LOOSE, that means ढीला, सही है? जैसे क्लोथ्स हमें लूज होते हैं ना, ढीले होते हैं, LOOSE। जब साइज बड़ा हो तो उसको लूज कहते हैं, एंड LOSE का मतलब है खो देना। अच्छा, मुझे ना बहुत मुश्किल होती थी ये होमोफोन याद करने में। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, मुझसे ये होमोफोन एक पेयर याद नहीं होता था। तो मुझे याद है मेरे शायद किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर आप दोनों लूज को कंपेयर करें तो ये वाले लूज में एक ओ कम है ना, तो जो लूज है जिसमें आपने एक ओ खो दिया, इस वाले में आपने एक ओ खो दिया, उसका मतलब है खो देना। टू लूज समथिंग, खो देना, खो देना, समझ रहे हो? ओके, माय हैंडराइटिंग इज प्रीटी अगली ऑनलाइन, बट स्टिल, खो देना, यू गेट इट? तो होमोफोन्स गाइस, किस बात पे फोकस है अभी? हमारा फोकस है होमोफोन्स पे। So we need to look at a couple of homophonic pairs that you have already been tested on. I mean, in the past, I'm sure you have seen these words before. And ये वो homophonic pairs हैं जो already SAT के exam में आ चुके हैं माजी में. And I'm not only talking about the SAT exam that was conducted post 2016 March. I'm even talking about the SAT exam that was conducted before that. ठीक है, आपको पता है March 2016 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ। तो जरा कुछ होमोफोनिक पेयर्स देखते हैं। मेरी नजर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to understand the meanings of these words. मैंने specifically 15 homophonic pairs choose किए,
This doesn't mean कि यही 15 homophonic pairs हैं, guys. Inshallah, I'll give you a whole list. Okay, just remind me in a couple of days. I'll send you a whole list on WhatsApp of homophones. Okay, and you need to know the meanings of those. रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. You need to know the meanings of those. अच्छा, I've even prepared a book for you guys, जो कि आपकी SAT का workbook material है. उसमें word list भी शामिल है. वो word list भी आप याद करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह as soon as you get the book. But at the same time, you need to remember कि रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. If you remember last week जब हमारी मुलाकात हुई थी, I told you a couple of ways in which you could memorize vocabulary, which includes audio memory, flashcards, mental pictures. Okay, in my opinion, अब देखो आप 2-3 महीने तो वैसी मेहनत करोगे ना वर्ड लिस्ट याद करने में, तो क्यों ना इन 2-3 महीनों को एक ऐसे तरीके पे इन्वेस्ट करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाए. सिर्फ सैट एग्जाम के लिए वर्ड्स याद ना करो प्लीज. सही है, इंशाल्लाह आगे चल के आपको यूनिवर्सिटी जाना है, फिर प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे. इंग्लिश विल नॉट लीव यू. So if you have a good grasp over these words, I'm very confident that you'll be able to use these words while you're communicating with normal people, or when you're writing letters, communicating with other people within the business, outside the business. Very important. So let's take one pair at a time, understand the meanings of these words because most people find these words confusing, and then we'll take it further. Okay, अब advice और advice जो पहला pair है, anyone wants to pitch in, guys? Unmute करो, मुझे जरा बताओ ये दो words का क्या मतलब है. Anyone? Come on, Janita, shabash, give it a try, bache. Guys, we need to wake up. Okay, Hiba is correct. Advice, this one is a noun. Okay, and this one is a verb. अच्छा, मैं एक छोटा सा जुमला बताता हूँ, आप मुझे बताना उसमें कौन सा वाला एडवाइस आएगा. The doctor's advice was to take care of my health. कौन सा वाला होगा? C वाला या S वाला? शाबाश, very good. The one with the C, because it's a noun. Doctor की advice. सही है. The doctor advised me to sleep for 8 hours a day. The doctor advised me to sleep for 8 hours a day. कौन सा वाला होगा? शाबाश, S वाला. Why? Because यहाँ पे अमल हो रहा है. It's a verb. It's an action. शाबाश, very good. Good. So you guys know the difference between these two words, right? C वाला is a noun and S वाला is a verb. ये वही difference है. In fact, मैं थोड़ा सा jump करके number 6 के बारे में बात करना चाहूँगा because both of them have similar reasons. C वाला is a noun and S वाला is a verb. गौर से देखो, ठीक है? तो practice जब C के साथ लिखा जाता है तो वो noun होता है. प्रैक्टिस एस के साथ लिखा जाता है तो वो वर्ब होता है. मिसाल आपकी एक मैथ्स की बुक है जिसके अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है? तो वो कौन सा वाला प्रैक्टिस होगा? प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1. सी वाला, एस वाला? कौन सा होगा? सी वाला. शाबाश. और अगर सर अब्दुल खालिक आपसे कहें प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, तो वो क्या कौन सा वाला होगा? सी वाला, एस वाला? एस वाला. शाबाश, बिकॉज उसमें आप एक्शन कर रहे हैं, राइट? सो सी वाला इज अ नाउन एंड एस वाला इज अ वर्ब. लेट्स लुक एट नंबर 2. अडॉप्ट और अडैप्ट में क्या फर्क है? एनीवन नोस द डिफरेंस बिटवीन अडॉप्ट एंड अडैप्ट? कम ऑन यासिर, क्या फर्क है बच्चे? अडॉप्ट और अडैप्ट में व्हाट्स द डिफरेंस? Sir, adapt mean is to someone's hobbies or co-curricular activities को कुछ अपना enhance करना, और adapt Okay. का मतलब I don't know, adapt. It's अच्छा, मैं बताता हूँ. मैं एक सेकंड चैट बॉक्स देख लूं. हिबा says
Adapt means to adjust. Adopt means to take what? Okay, let me clarify this for everyone. पहली बात तो ये, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना advice और advice की, तो मैंने बताया they're both interrelated words. एक noun है, दूसरा verb है. फिर हमने number 6 की बात की, practice. They're both interrelated. One is a noun, one is a verb. नंबर 2 में देखें, अडॉप्ट और अडेप्ट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. पहली बात तो ये है कि दे आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर. दूसरा मतलब, ये जरा ध्यान में रखिएगा, द वर्ड अडॉप्ट मींस टू टेक ओनरशिप ऑफ समथिंग. अच्छा, आपने सुना होगा चाइल्ड अडॉप्शन होती है. चाइल्ड अडॉप्शन होती है. लफ्ज अडॉप्ट का मतलब है मेकिंग समवन एल्सेस योर ओन, किसी और की चीज को अपना बना लेना. अब चाइल्ड अडॉप्शन में लफ्ज अडॉप्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल एक कपल है या कोई भी शख्स है जो कि एक बच्चा अडॉप्ट करता है, तो वो किसी और की बायोलॉजिकल औलाद को अपनी औलाद बना रहे हैं, है ना. मतलब किसी ऑर्फनेज जाएंगे, एक बच्चे को गोद लेंगे, उसको नाम देंगे, तालीम, तरबियत, एजुकेशन करें, देंगे उनको, कपड़े वगैरह, जो भी वालिदैन के फराइज होते हैं वो सारी चीजें उनका ख्याल रखेंगे बिल्कुल वालिदैन की तरह. लेकिन बायोलॉजिकली तो उसके वालिदैन नहीं है, लेकिन फिर भी वालिदैन के फराइज पूरे कर रहे हैं. तो किसी और की औलाद को अपनी औलाद बना लेना, ये क्या हो गया? अडॉप्ट. अच्छा, जैसे अभी यासिर भी कह रहे थे कि अडॉप्ट आदतों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब जैसे मेरे आप दोस्त हैं, मुझे आपकी एक आदत बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको अपना लिया, तो वो मेरी आदत नहीं थी आपकी आदत, लेकिन मैंने उसको अपना बना लिया, तो मैं आपकी आदत को अपना बना रहा हूं. इसी तरीके से कल्चर्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं गाइस. कल्चर्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं. हमारा कल्चर इंडिया से बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, हम अडॉप्ट करते हैं उनका कल्चर. बहुत सारी कंट्रीज में वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, वो उनका नहीं है लेकिन उन्होंने अपना बना लिया. जैसे अगर चाइना के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर, उनके गाने, उनका खाना पीना, उनका पहनावा फॉलो किया जा रहा है, तो चाइना का कल्चर नहीं है वो, लेकिन दे आर मेकिंग इट देयर ओन. सो लफ्ज अडॉप्ट का मतलब है किसी और की चीज को अपना बना लेना, ठीक है. और जैसे हिबा ने बिल्कुल, आई थिंक हिबा ने ही कहा था, हिबा ने बिल्कुल करेक्टली कहा, या हिबा सेड दैट. अच्छा, हिबा ने बिल्कुल सही कहा, अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्टिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. आमतौर पे आपने सुना होगा ह्यूमंस आर अडेप्टेबल एनिमल्स, क्योंकि यही इंसानी जिस्म है जो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल जैसी जगहों पे भी सरवाइव कर जाता है, और यही इंसानी जिस्म है जो कि सिब्बी और सहारा डेजर्ट और गोबी डेजर्ट और इस तरह के जेकबाबाद जैसे एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट्स में भी सरवाइव कर लेता है, बिकॉज वी आर अडेप्टेबल. अच्छा, बट the word adapt is not specifically used for weather or climatic conditions. You can use it in normal circumstances as well. जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, 10 साल से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फाइनली आपने सोचा कि नहीं, आई नीड ग्रोथ, तो आप आगा खान हॉस्पिटल स्विच करते हैं. जब आप लियाकत से आगा खान शिफ्ट करेंगे तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगा खान के अलग रूल्स होंगे, अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, अलग टाइमिंग्स होंगी, जो भी है. तो यू हैव टू अडेप्ट. जब पाकिस्तान से लोग कनाडा जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, दे हैव टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. दे हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स, अदरवाइज दे आर गोना स्ट्रगल. गैर कानूनी चीजें कर बैठेंगे. जैसे यहाँ पे हम डबल पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं, आप कनाडा जाके डबल पार्किंग में गाड़ी लगाएं, आपको पता चलेगा. सो यू हैव टू अडेप्ट. यू अंडरस्टैंड? सो पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया? अडॉप्ट और अडेप्ट के दरमियान डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके. Now let's look at affect and effect. Now these two words are also interrelated. Okay, effect, the one with an e, is a noun, and affect, the one with an a, is a verb. Okay, so effect is a noun and affect is a verb. अब मुझे बताओ, these were the disastrous effects of the earthquake. कौन सा वाला आएगा? E. शाबाश, very good. And अगर मैं आपसे कहूं स्मोकिंग अफेक्ट्स द लंग्स, ये कौन सा होगा? A. शाबाश, बिकॉज अफेक्ट कर रहा है, अमल है, एक्शन है. शाबाश, वेरी गुड. बैंड और बैंड तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था. बैंड मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल. आमतौर पे लोगों को लगता है कि म्यूजिकल बैंड होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. म्यूजिकल बैंड भी हो सकता है, सर्कस का भी बैंड हो सकता है, डांसिंग बैंड भी हो सकता है. अ बैंड इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके. अच्छा, दूसरा वाला बैंड तो आपको पता है, रुकावट, रिस्ट्रिक्शन वाला होता है. अच्छा, एक्सेस एंड एक्सेस. ये जो एक्सेस है, जो पहला वर्ड है, इसका मतलब है ज्यादती. ज्यादती, किसी लिमिट से ज्यादा होना.
और access with an A means क्या? Permission Range. or range Exactly. something. रेंज कह सकते हैं, परमिशन कह सकते हैं, पहुंच कह सकते हैं. मिसाल अगर मैं आपसे कहूं, our parents did not have access to the internet when they were teenagers. ठीक है, हमारे वालिदैन जब 13 से 19 की उम्र के थे तो उनके पास रेंज में, मतलब उनकी पहुंच में, उनके एक्सेस में नहीं था इंटरनेट. ठीक है, तो उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, we've talked about number 7 as well, complement and compliment. This one, the first one, COMPLI, this one means तारीफ. तारीफ करना, बेस्ट विशेस देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना. आपने देखा होगा केक्स के ऊपर लिखा जाता है, लिफाफे होते हैं ना, एनवेलप्स वगैरह, उनके ऊपर लिखा होता है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, वो आई वाला होता है, दिस वन. ठीक है. एंड COMPLE जो अभी हमने पढ़ा, जैसे इकोनॉमिक्स वाला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला है, सपोर्ट करना. तो अगर मैं कहूं योर ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट्स योर कैरेक्टर, तो इसमें कौन सा वाला होगा? ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट्स योर कैरेक्टर, कौन सा वाला होगा? शाबाश, ई वाला होगा. हेबा, वेरी गुड. ई वाला होगा, योर ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज इट्स सपोर्टिंग इट, राइट? अच्छा, लेट्स लुक एट नंबर 8. दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. दूसरा वाला तो वर्ड आपको पता होगा, ब्लॉक. ये जो BLOCK है, इसका तो मतलब आपको पता होगा, या तो ईंट को कहते हैं, ब्रिक को ब्लॉक कहा जाता है, या अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो किसी चीज को रोकने को भी ब्लॉक कहा जाता है. जैसे बॉक्सिंग में ब्लॉक होता है, पंचेस को ब्लॉक करते हैं. पहले वाले ब्लॉक का क्या मतलब है? BLOC. BLOC means what does it mean? A group of countries. BLOC means a group of countries having the same agenda. Okay, let me give you an example. European Union का नाम सुना है? European Union is a bloc. Yes, sir. It's a group of countries having the same agenda. That's why they're together. आपने इसी तरीके से SAARC countries का नाम सुना होगा. That's another bloc. इस तरीके से GCC countries का आपने नाम सुना होगा. That's also another bloc, right? NAFTA का नाम सुना होगा. That's another bloc. तो bloc is basically a group of countries having the same motive, having the same agenda. ठीक है. जैसे सिक्योरिटी काउंसिल होती है, आई एम नॉट श्योर अगर आप में से किसी ने मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की. Yes, उसमें sir, 5 कंट्रीज हैं. किया है, चलो वेरी गुड. उसमें 5 कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट कंट्रीज कहलाती हैं. सही, उनको P5 भी कहते हैं. दे हैव वीटो पावर. तो उन 5 कंट्रीज का एक ब्लॉक है. You know, they have a certain agenda, they have the same focus, which is why that can be considered as a block. Acha, let's look at number 9. Cereal with an S and cereal with a C. पहला वाला cereal क्या होता है? Sir, the one is the number and the other is a breakfast. शाबाश. तो दूसरा वाला जो C वाला है, that means breakfast cereal, जैसे Kellogg's, Cocoa Pops वगैरह. And the first one, cereal, SERIAL. अच्छा, आमतौर पे लोग कहते हैं सर ये पहला वाला जो है ना, this is drama cereal. आमतौर पे the No, kids sir. I teach, they say this is drama cereal. It's not necessary. बिल्कुल सही कहा यासिर ने. दिस इज द नंबर वाला सीरियल. जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा होगा, APGP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा. आपने सुना होगा ये लफ्ज, ये जो S वाला है, इसको इस्तेमाल किया जाता है सीरियल किलर, सीरियल नंबर. आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जब S नंबर करके 1 2 3 4 5 ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, दैट इज बेसिकली सीरियल नंबर. सो बात समझने की कोशिश करें. सीरियल किलर को सीरियल किलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो ऑर्डर में कत्ल करता चला जाता है. ठीक है. आपने ड्रामा सीरियल कहा, तो ड्रामा सीरियल को ड्रामा सीरियल इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसकी किस्तें होती हैं जो कि ऑर्डर में होती हैं, 1 2 3 4 5. यू अंडरस्टैंड? सो दिस वर्ड, द फर्स्ट वन, basically means sequence. Okay, now let's look at number 10. I'll be really impressed if you know the difference between these two words. Sir, किसी को पता है? immigration means the sum of people is coming in a country, and E wala immigration means the sum of people is going outside of the country. शाबाश, very good For Yasir, example, good job. I stands for import and E stands for export. Beautiful. Did I tell you this before? Sir, we studied in economics. Very nice, yaar. Shabash. Very nice. Very nice. I want to teach. I basically want to meet your economics teacher. बहुत अच्छी ट्रिक बताई है. This is true. Imagine करें आपकी कंट्री है, ठीक है,
ये आपकी कंट्री है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी कंट्री से बाहर बेचते हो, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि आप अपनी कंट्री में खरीद के लाते हो बाहर से, उनको इंपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट स्टार्ट्स विद एन ई, इंपोर्ट स्टार्ट्स विद एन आई। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में भी एग्जैक्टली यही फर्क है। कंसिडर कर लें कि एक प्रोडक्ट है, एक इंसान है जो कि मुल्क से बाहर जा रहा है, तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो एमिग्रेशन का मुजाहरा कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक इंसान मुल्क के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो इंपोर्ट हो रहा है, इमिग्रेशन से गुजर रहा है। तो अगर कोई शख्स पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहा है, तो बहुत अच्छा जवाब दिया यासिर ने। प्लीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से याद कीजिएगा। आपके जो इकोनॉमिक्स के टीचर ने आपको ट्रिक बताई है, मैं भी एग्जैक्टली वही ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, इट्स वेरी बेनिफिशियल। ओके शाबाश। नंबर 11 बताइएगा जरा, IT अपॉस्ट्रफी एस और ITS में क्या फर्क है गाइस? सर IT अपॉस्ट्रोफी S का मतलब इट इज होता है और दूसरे का नहीं पता। ओके अच्छा, IT apostrophe S is basically a contraction of it is, as you said, absolutely correct. और ITS is basically a possessive pronoun, it shows ownership of it, it का, सही है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ओनरशिप बयान करता है। अच्छा, आमतौर पे दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो अपॉस्ट्रफी नामी चीज है ना, this is used for ownership, which it is, you know, ये possession show करता है। let me just write this down, ये possession जरूर शो करता है, लेकिन IT apostrophe S वाले सिचुएशन के अंदर ये ओनरशिप नहीं बयान कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इट इज को शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, आई होप यू नो दिस, बट इफ यू डोंट प्लीज लुक एट द स्क्रीन। जहां भी हम किसी लफ्ज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है कांट, राइट? अच्छा, हम टी से पहले अपॉस्ट्रफी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपॉस्ट्रफी वहां लगाते हैं जहां हम किसी अल्फाबेट को स्किप कर रहे होते हैं। अब अगर आप इस वर्ड को इस वर्ड से कंपेयर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे वाले वर्ड में CAN मौजूद है, यहां भी CAN मौजूद है, टी भी मौजूद है, यहां भी टी मौजूद है, क्या मिसिंग है? NO। NO कहाँ आ रहा है? टी से पहले, तो आपने अपॉस्ट्रफी टी से पहले लगाया। इसी तरीके से अब इट इज को देख लीजिए, अभी आपने बताया था इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है IT अपॉस्ट्रफी S, तो दोनों वर्ड्स को कंपेयर करो, आई मिसिंग है S से पहले, तो मैंने अपॉस्ट्रफी लगाया S से पहले। कहने का मकसद ये है, कॉन्ट्रैक्शंस में हम अपॉस्ट्रफी हमेशा वहां लगाते हैं जहां हम किसी अल्फाबेट को स्किप कर रहे होते हैं। ये जो दूसरा वाला इट्स है, इसका मतलब है इट का। सो इफ आई से समथिंग लाइक आई हैव अ मार्कर इन माय हैंड, इट्स कलर इज ब्लू, तो कौन सा वाला होगा, पहला दूसरा? ITS होगा, इट्स कलर इज ब्लू, क्योंकि उसका कलर ब्लू है। अगर मैं कहूं आई हैव अ मार्कर इन माय हैंड, इट्स ब्लू इन कलर, तो अब कौन सा होगा? IT अपॉस्ट्रफी S। गुड। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो रही हो ना गाइस, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने जहन में ना उस कॉन्ट्रैक्शन को एक्सपैंड कर लेना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में अगर इट्स की जगह इट इज लग रहा होगा, तो नेचुरली जैसे जनीता ने बताया, इट मस्ट बी विद द अपॉस्ट्रफी। अगर नहीं आ रहा इट इज, तो फिर वो ITS होगा, ठीक है, शाबाश। अच्छा, रेज और राइज में फर्क बताइएगा जल्दी से। नंबर 12। क्या लग रहा है डिफरेंस गाइस? रेज और राइज, एनीवन? Raise basically involves human effort and rise does not involve human effort, ठीक है? मतलब जरा समझिएगा, I can't hear you, please raise your voice, इसमें आपकी एफर्ट शामिल है। जाहिर है आप मेहनत करेंगे तो आवाज उठेगी ना, आपकी जोर लगाएंगे तो आवाज उठेगी।
अच्छा, if you have a question, please raise your hand. Raise. Human effort involved है. Parents raise their children. है ना, उनकी यकीनन एफर्ट शामिल है. जो दूसरा वाला राइज है उसका जरा मतलब समझिएगा. The sun rises in the east. अब rises, मैं rise इसलिए कहता हूं because उसमें मेरी और आपकी एफर्ट शामिल नहीं है ना, वो अपने आप होता है. अच्छा, तो मुझे एक बात बताइएगा, वैल्यू ऑफ द डॉलर, इज इट रेजिंग या राइजिंग? Sir, the I one. राइजिंग, Rise. राइट, एग्जैक्टली. क्योंकि आपने ये बात इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी कि किसी भी एक शख्स के हाथ में ये कंट्रोल में नहीं है कि वो खुद डॉलर की प्राइस, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अभी 166 है, मैं यासिर से कहूं यासिर इसको जरा 11 बजे तक 168 करके दिखाओ, यासिर कांट डू इट ऑन हिज ओन. You know, there are macroeconomic factors which are coming into play, and of course the entire economy, the shift of demand and supply is going to move the price upwards or downwards, right? इंसान के इख्तियार में नहीं है. उसी तरीके से राइज आएगा because it's not in your control. अब एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर मैं आपसे कहूं, एक अभी जैसे मैं मार्केट की एग्जांपल दे रहा था, एक मार्कर है जो कि मैं प्रोड्यूस करता हूं, सही, इट्स माय कंपनी एंड स्टेशनरी शॉप पे वो अवेलेबल है, आप वो खरीदने जाते हैं, आपको लगता है कि भाई वो 15 रुपीज का है, लेकिन प्राइस बढ़ के अब 20 रुपए हो गई है, मेरा मार्कर है, ठीक है. तो दुकानदार आपसे कहेगा कि भाई अब ये 15 रुपीज का नहीं है, अब ये 20 रुपीज का हो गया. तो आपके लिए प्राइस क्या हो गई है, रेज हो गई है या राइज हो गई है? RISE, rise. From 15 एग्जैक्टली, to आपके लिए 20. राइज हो गई है क्योंकि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. लेकिन मेरा मार्कर है तो मैंने इसकी प्राइस को 15 से 20 तक क्या किया, रेज किया, राइज किया है? A, the raise. शाबाश, रेज किया है. वेरी गुड, क्योंकि इट वाज इन माय कंट्रोल. तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पेट्रोल की कीमतें हमारे लिए राइज हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेज कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है. तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ये आमतौर पे आ चुका है पास्ट पेपर्स में भी. अच्छा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, you need to know the meanings of these two words. accept का मतलब है कबूल करना, पहला वाला, and accept का मतलब है इसके अलावा या इसके बावजूद, ठीक है. अच्छा, eminent and imminent, okay, in fact I need to properly spell this word, it's EMINENT. okay, यहाँ टाइपो हो गया मुझसे. eminent का क्या मतलब होता है गाइस? फेमस, जाना माना, मशहूर, मकबूल. मैं कहूं फलाना डॉक्टर जैक इज एन एमिनेंट सर्जन, is recognized, you know, as an authority in surgery. Acha, if we talk about the second one, imminent, IMMINENT, is something which is definitely going to happen, that even round the corner. कोई चीज जो होना ही होना हो, जिसको रोकना नामुमकिन हो, ठीक है, तो वो imminent होगी, जो पक्की पक्की होनी है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, you know, time's going to move forward, time is not going to stop, it is going to be 10:30. ये सारी चीजें imminent है, जो नहीं रुक सकती. अच्छा, when we look at the last pair that we have here, 2 and 2, very simple, but it has come in the exam 5 times already since 2009. TO is very different from TOO. सही है. TOO इस्तेमाल किया जाता है बहुत के लिए, very, a lot, too much, सही है. और TO जो है, single O, उसका मतलब क्या है? It's a preposition which shows direction basically. To जो है, जो पहला वाला word है, it shows direction. सही है. I will give this to him. तो ये basically direction दिखा रहा है उसकी तरफ, right? So that's something that you need to keep in mind. Very important pairs. और यकीनन इसके अलावा भी बहुत सारे pairs हैं. Just remind me in a day or two. Inshallah, I'll give you a whole list of homophones that you need to practice from. So basically, that's the end of rule number 7. Okay, there's not much to tell you about rule number 7. All you need to keep in mind is that you will be given circumstances in which, you know, the examiner tricks you on homophones, and of course the only way you can practice and make sure that you do not make mistakes is by knowing the meanings of these homophonic pairs. जब तक इन अल्फाज के मतलब नहीं पता होंगे, of course आप इनके incorrect uses नहीं समझ पाएंगे. Clear? Now let's look at rule number 8. Rule number 8 is called wrong tense. Now let's talk about a couple of frequently asked questions. आमतौर पे जब मैं tenses की बात करता हूँ ना, तो बच्चे एक दो सवाल पूछते हैं मुझसे आमतौर पे ना. तो मैं पहला सवाल जो आमतौर पे मुझसे पूछा जाता है, मैंने सोचा मैं क्यों ना आपकी क्लास में ही आज डिस्कस करूं. पहला सवाल ये पूछा जाता है कि सर, इज इट ऑलराइट टू हैव टेंस चेंजेस इन अ सेंटेंस?
मतलब बच्चे बहुत frequently ये पूछते हैं कि sir, are we allowed to change tenses in a sentence? So the answer is shifty tenses. Many students believe that tense changes should always be avoided. अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि tense change नहीं होना चाहिए sentence में. However, sometimes a shift in tense is necessary to indicate a change in time frame of the action. It is unnecessary in cases where it is causing awkwardness, and in those cases it should be avoided. So of course, provided that the context of the sentence has a time travel, you can change tenses. Long story short, इसको आम अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ. आज 2020 12 सितंबर को मैं बैठ के अगर पाकिस्तान की आजादी की बात कर रहा हूं, या जिस दिन जिन्ना साहब मौरीपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे पहली दफा पाकिस्तान 7 अगस्त 1947, उसके हवाले से बात कर रहा हूं, तो यकीनन मुझे प्रेजेंट को पास्ट टेंस से जोड़ना पड़ेगा, है ना? Why? Because I'm talking about two different what time frames. I'm talking about two different time frames. Here you go. This is the word. Talking about two different time frames. So if I'm talking about two different time frames, आज बैठ के मैं 73 years पुरानी बात कर रहा हूँ, of course I will have to change tense. अगर आज बैठ के मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, you know, inshallah, when you will graduate from university and you'll be working for a multinational company, for example, so यकीनन मुझे present को future tense से जोड़ना पड़ेगा, because I'm talking about two different time frames. You understand? But if I'm sitting today and talking about today and I'm still changing my tense, that is not acceptable. Okay, so answering your question, जो आमतौर पे लोग सोचते हैं, can we change tenses? Of course you can, provided that there is a change in time frame as far as the sentence meaning context is concerned. Okay, the second question that students usually ask me is, sir, can we change tenses while writing a story? And this is very important for you guys as well, because as you know, there's an essay writing component of your SAT exam, which is optional, but you can definitely attempt it for extra bonus marks. So can you change tenses while you're writing a story? The answer is narrative writing is what is usually associated with essay writing. You can really switch between past, present, and future verb tenses here, but it's not that simple. The key is when you start writing in a particular tense, you have to be consistent unless there is a valid reason to switch between tenses. So when you're writing a story, when you're writing an essay, whether it's creative writing, narrative writing, or descriptive writing, or argumentative writing, you have to maintain a tense unless and until there's a valid reason for you to switch between tenses. So tenses में consistency बरकरार रखें unless and until जुमले के context में time frame change हो रहा हो. ठीक है? Now this is too much theory. I don't like too much theory. Let's talk about a couple of examples and see what to do with them. Okay, so I've given a couple of examples with their explanations. So let's look at the screen first. पहली example मैंने आपके लिए लिखी है. Many superb tennis players turned professional at an alarmingly early age, but because of their lack of physical stamina, suffered early in their careers. Now you can see that this sentence has a tense shift. ये हमें नजर आ रहा है present indefinite tense है turn, और ये हमें नजर आ रहा है simple past tense. और यहाँ जो tense shift है वो जायज नहीं है, क्योंकि हम आज ही बैठ के आज के टेनिस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली अगर जुमला स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, तो जुमला खत्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही होना चाहिए था, और यहाँ पे टेंस शिफ्ट जायज नहीं है. अगर हम आज के टेनिस प्लेयर्स को माजी के टेनिस प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे होते तो वो बिल्कुल जायज होता, लेकिन इन दिस केस लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन. When there are two verbs in a sentence, as you can see, verb number 1, verb number 2. When there are two verbs in a sentence, first study the time relation between the verbs and determine whether they are logical as presented. In this sentence, the verb in the first clause of the sentence is turn, a present verb. जैसे मैंने आपको बताया, present indefinite है. The action is not occurring at any specific occasion. ठीक है, तो it's not happening at a particular point in time. It's happening in an indefinite range. But
in the general present. The verb suffered is in the simple past tense, as I told you, but it should remain in the general present as well, according to parallelism honi chahiye. You get it? There should be parallelism in the sentence. Unnecessarily tenses change na kare aap. Even though the phrase early in their careers may suggest a past time, be sure that there is a logical relation between the verbs when they are two verbs presented in the same sentence. Okay? So that's something that you need to keep in mind. Now, I want someone to tell me suffered ki jagah yahan kya likha hona chahiye tha? Quickly. Guys, wake up. Suffered की जगह क्या होना चाहिए था? हानिया? Yes. ये किसने लिखा है? Hiba. Hiba is right. It should have been suffer. Suffer. It should have been suffer. Why? Because we have to make it parallel to turn. अच्छा, मुझे जरा एक बात बताइएगा, suffers क्यों नहीं लिख रहे हम? Suffers क्यों नहीं लिख रहे यासिर? हमने suffers क्यों नहीं लिखा? Because they are a single verb. That's why. Exactly. Suffers is a singular verb. And हमारा subject क्या है? Subject क्या है हमारा? Tennis players. Tennis players, sir. है. Exactly. तो चूंकि tennis players plural है, हमारा आप देख सकते हैं tennis players plural है, turn भी plural है, उसी हिसाब से ये भी plural होना चाहिए. Subject verb agreement. Remember, we spent a lot of time studying subject verb agreement. It's important. Okay? So suffered is wrong, and the way we can fix it is by making it suffer. Okay? So that was the first example. I've included another example as well. Okay? In fact, there are a couple of sample questions. Let's look at the first one. Accounts of their voyages reveal that some of the first Europeans to travel to North American continent think that they had landed in Asia. क्या लगता है आपको? Come on, read the sentence clearly and tell me what you think is right or wrong. Come on, guys. Accounts of their voyages reveal that some of the first Europeans to travel to the North American continent think they had landed in Asia. Acha, I'm sure you guys must have read about Christopher Columbus and Vasco da Gama, the people from Europe, you know, the European explorers who accidentally discovered North America in the wake of discovering India, right? So that happened in the late 15th century, 1492 से 1494, I believe. Okay, so late 15th century में जब ये मामला हुआ था, यकीनन हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं which is more than 450 years ago. So यकीनन हमारा tense यहाँ पे think नहीं हो सकता. It should have been thought, as Hania pointed it out, I guess. हानिया ने कहा था थोड़ी देर पहले. हाँ, बिल्कुल सही कहा था. It should have been thought. अच्छा, अब आपके जहन में शायद ये बात आ रही हो कि सर थॉट कैसे हो सकता है? ऑप्शन बी में तो रिवील लिखा हुआ है, और रिवील आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है. ये रिवील्ड तो नहीं लिखा हुआ, तो रिवील कैसे लिखा हुआ है? फिर बाद में आप कह रहे हैं थॉट होना चाहिए. इसलिए होना चाहिए क्योंकि अकाउंट्स ऑफ देयर वॉयेजेस आज भी रिवील करते हैं. देखो बेटा, यहाँ पे अकाउंट, ये अकाउंटिंग वाला अकाउंट नहीं है. अकाउंट का यहाँ पे मतलब है रिकॉर्ड. ओके, सो जो लोग आज से तकरीबन 500 साल पहले यूरोप से नॉर्थ अमेरिका गए थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था. उन्होंने किताबें लिखी थी. वो किताबें आज भी मौजूद है. वो वक्त तो गुजर गया, वो लोग तो इंतकाल कर गए, लेकिन वो जो किताबें मौजूद हैं, मतलब वो आज भी म्यूजियम्स वगैरह में मौजूद हैं. तो वो किताबें आज भी रिवील करती हैं कि उस जमाने में वो ये सोचा करते थे कि ये जो हम पहुंच गए हैं वो एशिया है. उनका गलत ख्याल था,
but you know they thought it was India. That's why they called the Native Americans Native Indians. आपने सुना होगा एक phrase Red Indians. खैर that's derogatory. Red Indians मत कहिएगा, that's a racist term. Native Americans कहा जाता है उनको, ठीक है? तो the first question, the answer is D for David, because think की जगह thought होना चाहिए था, क्योंकि हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि 500 साल पहले गुजर चुके हैं, ठीक है? क्लियर हुआ पहला सवाल गाइस? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. आज आप लोग काफी ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव है वैसे. You guys should wake up. Okay, let's look at the second sentence. The country's land reform law is first proposed by a coalition government in 1945 and included farmers who lost their farms during collectivization. Simple. Very simple. क्या लग रहा है guys? was होना चाहिए था इसकी जगह. Exactly. Was होना चाहिए because हमें hint किस चीज से मिल रही है? 1945. Pre-Pakistan, right? So काफी पुरानी बात हो गई, 75 years ago. So इस कैसे होगा? Was होगा. शाबाश. Very nice. Let's move forward. Let's look at another 2 questions based on tenses, क्योंकि ये कभी कभार confusing होते हैं. Let's look at number 3. At art auctions during the last few years, paintings by some acknowledged masters will have brought prices in the millions. बताइए. प्रॉब्लम नजर आ रही है? एक तरफ लिखा हुआ है आर्ट ऑक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स should have bought maybe. अच्छा, will have brought तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है ना, क्योंकि will आप जानते हैं फ्यूचर टेंस. दूसरी तरफ हम कह रहे हैं आर्ट ऑक्शंस जो कि पिछले कुछ सालों में हुए हैं, तो आर्ट ऑक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स का मतलब है ये पास्ट कॉनोटेशन हमें दे रहा है, ठीक है? Paintings by some acknowledged masters have brought prices. अब जरा समझिएगा, have brought में क्यों कह रहा हूं? Because I'm using present perfect tense. The reason why I'm using present perfect tense is because देखो prices millions में आई थी और आज भी millions में मौजूद हैं. So this is present perfect tense. Now I need to tell you something about present perfect and past perfect. बहुत confusion होती है खास तौर पे A level candidates को, तो ये मैं लिख के आपको बता देता हूं. देखें, एक चीज होती है present perfect और एक चीज होती है past perfect. Okay, I'm sure if you go on YouTube or you Google it, you will find tons of explanations regarding these two tenses. But in my opinion, that would be unnecessary because they would be confusing, specifically because of your educational background. So I will make it very simple for you. Present perfect और past perfect में क्या फर्क है? Present perfect कोई ऐसी चीज है जो past में शुरू हुई और आज भी continue हो रही है. That's present perfect. Past में शुरू हुई और आज भी चल रही है. Okay? Past perfect कोई चीज माजी में शुरू हुई, एक अरसा चली और माजी में ही खत्म हो गई. एंड दिस इज टुडे. हम आज बैठे हुए जब इस मामले को देख रहे हैं तो ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. तो ये जो पूरा टाइम ब्रैकेट है ये हमें पास्ट में नजर आ रहा है. I'll give you a couple of examples. Let me give you a couple of examples. Present perfect की example देखो. Pakistan has been independent since 1947. Alhamdulillah. Pakistan has been independent since 1947. अब ये क्या हुआ? 1947 is my starting point, and that time frame continued और आज 12th September 2020 को भी Pakistan alhamdulillah is independent. So this is called present perfect tense because this is something that started in the past and it's still going on today. Past perfect. Pakistan experienced a green revolution during the 1960s. या फिर मैं कहूँ Pakistan had been through a green revolution during the 1960s क्योंकि ये 60 में शुरू हुआ
और 70 में आके खत्म हो गया, 69 में आके खत्म हो गया, ठीक है। तो माजी में ही शुरू हुआ, एक अरसा चला और फिर माजी में खत्म हो गया, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। समझ में आया? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें, पहला वाला जो जुमला लिखा है आपके सामने, 8 ऑक्शंस हुए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, लास्ट फ्यू इयर्स लिखा है। पेंटिंग्स बाय सम एक्नॉलेज्ड मास्टर्स, विल हैव ब्रॉट तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि विल तो फ्यूचर की बात करें, जबकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करें ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। हैव ब्रॉट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्राइसेस पिछले 6-7 सालों से बढ़ी थी वो आज भी बढ़ी नहीं है, वो आज भी बढ़ी नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई और आज भी वैसी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे विल काट देंगे हम और हैव ब्रॉट लिखेंगे, जिससे जुमला एक्सेप्टेबल हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्लियर हुआ? Guys, okay, cool. Now let's look at the last sentence based on tenses. The Port Huron statement and outline of the values and goals of the students for a democratic society was having a major impact on social protests in the decade following its 1962 publication. बताइए। Hania, what do you think? Okay, अब मुझे एक बात बताओ, पोर्ट ह्यूरॉन स्टेटमेंट है, अब मुझे नहीं पता ये पोर्ट ह्यूरॉन स्टेटमेंट क्या है, तो ये लिखा हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं यासिर? मॉडिफायर ना? Exactly, इसको मॉडिफायर कहते हैं। इट्स अ पीस ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो पोर्ट ह्यूरॉन स्टेटमेंट मेरा सब्जेक्ट है, अब मुझे नहीं पता ये पोर्ट ह्यूरॉन स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने मजीद इंफॉर्मेशन दे रखी है, एन आउटलाइन ऑफ द वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दैट्स माय मॉडिफायर। वाज हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन सोशल प्रोटेस्ट इन द डेकेड फॉलोइंग 1962 पब्लिकेशन। डेकेड कहते हैं 10 सालों को। तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, एक चीज 1962 में हुई और 10 साल बाद तक 1972 तक उसका इंपैक्ट हुआ। आज हम कहां बैठे हैं? आज हम बैठे हैं 2020 में। तो ये टाइम फ्रेम क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इट। कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई, एक अरसा चली, उसके बाद पास्ट ही में खत्म हो गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पास्ट टेंस में है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज हम देख रहे हैं 2020 में, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हमें पास्ट में नजर आ रहा है, विच इज व्हाई इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, विच इज व्हाई यहाँ पे वाज हैविंग की जगह क्या होना चाहिए? हैड। तो जुमला अगर होता तो पोर्ट ह्यूरॉन स्टेटमेंट एंड आउटलाइन ऑफ द वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स for a democratic society had a major impact on social protest in the decade following its 1962 publication. तो ये जुमला करेक्ट होता, तो the answer must be C. Reason is was having की जगह यहाँ had होना चाहिए था। Clear? Does that make sense? सर फिर was having की कोई situation बताएं, because that's like confusing. Of course. देखिए, was having is past continuous. Past continuous, कोई चीज जो माजी में हो रही हो उसको was having कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I say something like the school was having a lot of admissions during the year 2020. Yeah, okay, 2020 तो अभी चल रहा है। The school was having a lot of admissions during the year 2015. अब पता है क्या हो रहा है? ये सवाल किसने पूछा है? हानिया ने पूछा है। ओके, हानिया पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है
कि हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं. We're not talking about a time frame. Albatta, if I say something like, if I change the same sentence and say the school had a lot of admissions between January and December of 2015, तो फिर मैं past perfect इसको consider करूंगा, क्योंकि अब मैं एक starting point का भी जिक्र कर रहा हूं और एक ending point का भी जिक्र कर रहा हूं. Albatta, if I'm only talking about one particular time point, I'm not talking about a time frame, तो फिर मैं past continuous इस्तेमाल करूंगा. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कहूं the school was having a lot of admissions in the year 2015, so I'm not talking about a time frame, I'm just talking about a particular year, so that would be past continuous. अगर मैं एक time frame की बात कर रहा हूं, January to February, या January to September, तो वो एक time frame हो गया, starting point भी है, ending point भी है, उस केस के अंदर past perfect आ जाएगा. So याद रखिएगा, for present perfect there has to be a time frame. For past perfect, there has to be a time frame. But for past continuous, there has to be a particular point. For present continuous, there has to be a particular point जिसके ऊपर अमल हो रहा है. जैसे अगर हम कहते हैं he is eating, he was eating. अब इसमें क्या हो रहा है, हम किसी टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां एक अमल कंटिन्यूएशन में हो रहा था. Jack was studying. अब ये क्या हो रहा है, I'm not talking about a time frame. मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं जब वो पढ़ रहा था. अगर मैं कहूं Jack had been studying from 12 o'clock to 4 o'clock, तो अब यहां पे past perfect में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट का भी जिक्र कर रहा हूं और एंडिंग पॉइंट का भी जिक्र कर रहा हूं, तो नेचुरली मेरे पास एक टाइम फ्रेम आ गया. Does that make sense? I think ये सवाल हानिया ने पूछा था. Does that make sense? I'm Hiba and yeah, समझ आ गया. ओके कूल. मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखें सिलसिला ये है कि ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थ्योरी विद यू. ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन ऑर्डर टू मास्टर दीज कॉन्सेप्ट्स. और जिस तरीके से पिछले हफ्ते मैंने आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया था, इंशाल्लाह यू विल हैव अनदर टेस्ट टुमारो, ठीक है? एंड यू डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट. And I want each and every one of you to attempt that test. मैं इंशाल्लाह उसको ग्रुप पे आपके पोस्ट करवाऊंगा. उसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल पिछली दफा की तरह. You have to send me your answers. I'll discuss the answers with you. And it's only after tons and tons of practice that you will master these skills. एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब आप ये सारे रूल्स डाइजेस्ट कर चुके होंगे, आप सेंटेंस देखोगे एंड एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा एरर क्या है. ऑफ कोर्स अभी आप फंबल कर रहे हो बिकॉज यू आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट. And it's perfectly understandable. Trust me, आपको लग रहा होगा अभी आपके concepts clear नहीं है. I was a million times worse than you when I was starting this at your age. Okay, so trust me, you're doing very well. Each and every one of you, you're literally doing very well because no one is expected to master these concepts in the first attempt. Of course, you're expected to make mistakes. Okay, so chill out, relax, tension लेने की जरूरत नहीं है. Was having का concept याद रखना, कोई चीज कंटिन्यूएशन में हो रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देयर हैज टू बी अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें स्टार्टिंग भी होगी, एंडिंग भी होगी, और उसकी बुनियाद पे फैसला होगा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का. नाउ वैसे तो आई हैड प्लान्ड टू कंप्लीट टिल रूल नंबर 13 टुडे, बट सिंस यू गाइस वर लेट, I'll wrap it up at rule number 9. Okay, so I have 15 minutes left. I'm going to wrap it up at rule number 9. Let's talk about rule number 9. Number agreement problems. Now this is something which is super easy, but the fact that it's super easy overwhelms students. Students get overconfident and they mess up on questions like these. पहला जुमला देखिएगा जरा. Students must wear their ID card while on campus. 90% students को ये जुमला देखते हुए लगता है कि there's nothing wrong with it. It's correct, even though it's absolutely incorrect. Why? Because I'm talking about students and they must wear their ID cards so that the subject and the object are matching each other in number. Students हैं तो ID cards होंगे. बहुत सारे students का एक ID card कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. अभी कुछ दिन पहले की बात है, I teach at a particular institute. वहां पे मैं SOPs एक ड्राफ्ट कर रहा था. मुझसे कहा गया कि भाई SOPs ड्राफ्ट करके दें. तो मैंने एक लाइन लिखी, students must not touch their faces. आजकल वो कोरोना वायरस के वजह से we have to make sure कि students know what they're supposed to do and what not to.
डू, तो बेसिकली एक लिस्ट थी रूल्स की जिसके अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टच देयर फेसेस। तो फौरन मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आई, उन्होंने कहा सर हर इंसान का एक चेहरा होता है, आपने ये क्यों लिखा है कि स्टूडेंट्स को अपने चेहरों को टच नहीं करना चाहिए? तो क्या एक इंसान के एक से ज्यादा चेहरे होंगे? मैंने कहा भाई अगर मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा होता, अगर मैं कहता अ स्टूडेंट, तो फिर मैं कहता अ स्टूडेंट मस्ट नॉट टच हिज स्लैश हर फेस। लेकिन क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मुखातिब कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस कर रहा हूं, तो मुझे कहना चाहिए स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टच देयर फेसेस बिकॉज इट्स कलेक्टिवली बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये कहना कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टच देयर फेस, तो इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही चेहरा है, एंड दैट्स नॉट राइट। उसी तरीके से अब जैसे आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, सारे एडल्ट्स हैं माशाल्लाह, सारे 18 अबव है, सबका अपना अपना आईडी कार्ड है, सबका अपना पासपोर्ट है। तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो किसी और कंट्री के वीजा के लिए, तो आप क्या कहोगे? माय फैमिली मेंबर्स विल सबमिट देयर पासपोर्ट या विल दे सबमिट देयर पासपोर्ट्स? दे विल सबमिट देयर पासपोर्ट्स होगा। और पासपोर्ट्स इसलिए होगा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर बंदे की एक से ज्यादा पासपोर्ट्स हैं, इसका ये मतलब है कि क्योंकि 5 लोग हैं, 5 पासपोर्ट्स होने चाहिए। लुक एट द सेकंड एग्जांपल दैट आई हैव रिटन हियर, फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी advancements and the widespread use of the internet is dramatically affecting our life in the contemporary world. यकीन जाने अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक अखबार में, उसमें मैंने ये गलती देखी, our life। मुझे एक बात बताएं, जब R प्लॉरल है, R जब प्लॉरल है, तो लाइफ हम सिंगुलर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दिस इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? आवर लाइव्स। जब ये प्लॉरल है तो इसका भी प्लॉरल होना जरूरी है। यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। सो दिस इज अ कॉमनली मेड एरर। फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स and the widespread use of the internet is dramatically affecting our lives in the contemporary world. Okay, so you need to keep that in mind. Our lives, हमारी जिंदगियां। Okay, so that's something which is super important. इसमें हो क्या रहा है इसको जरा समझिएगा। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लॉरल, वर्ब प्लॉरल, ये हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अभी रूल नंबर 9 में हम इसके आगे एक एडिशन कर रहे हैं, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसका ऑब्जेक्ट भी उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। जहां सब्जेक्ट प्लॉरल होगा उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट भी प्लॉरल होना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी हिबा से बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं हिबा यू हैव टू सबमिट योर आईडी कार्ड, राइट? तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 बच्चों से एक साथ बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स यू हैव टू सबमिट योर आईडी कार्ड्स। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स है तो आईडी कार्ड्स होगा। ओके, सो दैट the subject and object are also agreeing with each other. It's very important. Look at a couple of examples so that you understand this. The advertisement in the newspaper requested that only persons with a high school diploma apply for the position. Okay, now क्या हो रहा है इस जुमले के अंदर? एक एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है उन लोगों से, ओनली पर्सन्स विद अ हाई स्कूल डिप्लोमा अप्लाई फॉर द पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या गलती नजर आ रही है गाइस आपको? पर्सन्स की जगह पीपल होना चाहिए था। ओके 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 ओके, हु सेड दैट? जनीता? यस सर। Okay, now let me tell you something. Okay, Janita, let me tell you something. Okay, it's not your fault that you said that. Okay, because I know a lot of people in India and Pakistan do not use the word persons. They do not use the word persons. हमें यूज करने की आदत है people, और आमतौर पे हम ये समझते हैं कि सिंगुलर लफ्ज है पर्सन और इसका प्लॉरल है people. हमें आमतौर पे ये लगता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में पीपल इस्तेमाल किया जाता है इंडो पाक की अंग्रेजी में, लेकिन इन रियलिटी द सिंगुलर इज पर्सन एंड द प्लॉरल इज पर्सन्स। इफ यू चेक द डिक्शनरी, दिस इज अ ग्रामेटिकली परफेक्ट वर्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द वर्ड पर्सन्स। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडो पाक की अंग्रेजी में लफ्ज पीपल इस्तेमाल किया जाता है, बट द वर्ड पर्सन्स आल्सो एग्जिस्ट्स। आपको पता है ना, रीजनली लैंग्वेजेस में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में हम आमतौर पर चश्मों को स्पेक्टिकल्स कहते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका जाके बोलो माय स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, तो लोग हंसेंगे आप पे,
because no one uses the word spectacles. Everyone says glasses. आप यहाँ पे कहते हैं फुटबॉल, आज ज्यादा दुनिया उसको सॉकर कहती है. आप यहाँ पे फुटपाथ कहते हैं, आज ज्यादा दुनिया उसको पेवमेंट या साइडवॉक कहती है. तो उसी तरीके से loves persons की जगह हम people लगाने के आदी हैं, लेकिन that does not mean कि the word persons is wrong. अब जब मैं only persons को देखता हूं तो इसका मतलब है सिर्फ वो लोग, सिर्फ वो लोग. तो अखबार में एक इश्तिहार आया, the advertisement in the newspaper requested that only persons, सिर्फ वो लोग with a high school diploma apply for the position. क्या लग रहा है guys? Hiba, give it a try. I think there is no error. I don't Okay. know. Okay, I'll tell you. There is an error. किसी को लग रहा है यासिर कुछ नजर आ रहा है? Oh, सर वो with a high school diploma लिखा हुआ है, जबकि high school Exactly. diploma तो होना चाहिए. क्यों होना चाहिए हाई स्कूल डिप्लोमा जेनिता? क्योंकि persons की बात हो रही है, एक person की बात नहीं हो रही. Absolutely, she's right. Okay, she's absolutely right. Very good. Exactly, यही बात हो रही है. The ad in the newspaper requested that सिर्फ वो लोग जिनके पास एक हाई स्कूल डिप्लोमा है. That's not acceptable. तो only persons with a high school diploma की जगह होना चाहिए अ मैं काटूंगा और डिप्लोमा के आगे एस लगाऊंगा. So the advertisement in the newspaper requested that only persons with high school diplomas apply for the position. Read the explanation. Nouns in the sentence must have logical number relations, as I told you. They should agree. The noun in question, the subject of the second clause of the sentence is persons, a plural noun. However, the noun diploma is singular. Because the phrase is singular, because the phrase is singular, it seems to say that this group of people shares one diploma, when in fact each person should have his or her own diploma. The underlined phrase should read with high school diplomas. जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी की बात हो रही है. यहां अ काटेंगे, एस लगाएंगे, उससे होगा क्या कि मल्टीपल पीपल के मल्टीपल डिप्लोमास है. ये बात जाहिर हो रही है. Make sense? Multiple people, multiple diplomas. Super important question. Okay, let's take another example and then we'll talk about it. पहला सवाल देखो जरा. The rubble. Rubble का मतलब जानते हो? रबल का मतलब होता है डेबरी. डेबरी का मतलब होता है मलबा. जब एक शहर टूटता है ना, जब कोई भी बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश होती है, तो जो ढेर लगता है ईंटों का, पत्थरों का, उसको डेबरी कहते हैं, रबल. The rubble of Berlin and the division of Germany were a reminder of the defeat of the Axis powers in World War II. Simple question. No error. Acha, read this again, Janita. The rubble of Berlin, this is A, and plus the division of Germany, this is B, were a reminder? Reminders. Sorry. Absolutely. Very good. Very good. Exactly. So what we need to do is, since we're talking about two things here, we're talking about the rubble of Berlin and का मतलब समझ लें plus है, and the division of Germany, this is two. Since there are two things here, were a reminder कैसे हो सकता है? It has to be reminders. क्योंकि ये एक रिमाइंडर है और ये दूसरा रिमाइंडर है. मजमूई तौर पे, कॉम्बिनेशनल तौर पे ये दोनों क्या हो गए? रिमाइंडर्स. समझ में आया? Good. Let's look at the number, the second one. Few could foresee the Model T and Model A produced by Ford in the early 20th century as the prototype of today's automobile. Prototypes होना चाहिए instead of prototype. Exactly. शाबाश. Very good. क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, ये एक प्रोटोटाइप है, फिर वही बात है, प्लस हो रहा है एंड की वजह से 20th century में एज द प्रोटोटाइप नहीं हो सकता, प्रोटोटाइप्स होना चाहिए. Right? Very good. So now you're able to identify errors on the basis of that. Good. Okay.
now you need to know bache ke rule number 10 to 13 are based on pronouns, okay, and they're interconnected. So I don't want to start with 10 right now because फिर वो incomplete बात रह जाएगी. Barely have a couple of minutes now. I'll speak to the administration and I'll try to stretch the time limit of tomorrow's class. You know, you have a class tomorrow with me. From now onwards, we'll have 2 classes a week. It's super duper important because, you know, today is the 12th and we need to pace up a little bit. तो कल इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करवाऊंगा ताकि हम ज्यादा कवर कर सकें. Guys, please see, you and I need to cooperate in a better fashion, okay? You need to be on time and you know, you need to be responsive. तो थोड़ा सा ना टाइम फॉलो करें because आज हमारी क्लास लिटरली 9:48 पे स्टार्ट हुई है जबकि 9:30 पे स्टार्ट होनी थी. तो we literally wasted 18 minutes. So inshallah we'll not do that from now onwards because that would, you know, really negatively affect your performance. ठीक है बेटा? So as far as what we discussed today, we covered rule number 7, 8 and 9. Any questions, any concerns, please let me know. Guys, all good, Yasir? Chalo, perfect. Acha, and as far as last week's test is concerned, I mean, if you have any questions or concerns, you know, please text me up. I'll get back to you as soon as I can because your concepts need to be spot on clear. Beta, SAT का exam रट्टे पे या past papers की बुनियाद पे नहीं हो सकता. Of course, हम past papers के सवाल solve करेंगे. And when I'm talking about past papers, I'm talking about the college board exams, okay? क्योंकि college board कराता है ना, आपका SAT का exam conduct कराता है, जैसे CIE आपके O levels, A levels conduct कराते हैं. हम of course वो questions करेंगे, but इस नियत से करेंगे कि हम ट्रेंड देख सकें और सवालात की लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख सकें. जो सवाल आपके पेपर में आएंगे, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आपके जो SAT 1 एग्जाम में आएंगे वो वही सवाल नहीं होंगे. They will be similar, but the reason why we have to do past paper questions is so that we understand the trend and the level of difficulty. There onwards, you have to use your concepts. So please, if you're getting any questions wrong, make sure you discuss them with me so that, you know, your concepts get polished. Okay? So thank you very much for joining in, guys. Inshallah, we'll speak tomorrow. Please be on time and inshallah, we'll continue from rule number 10 tomorrow. Okay? Thanks.